Student, just write work done in rotating a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Then only you could know how the energy everything came. Right? Work done. Right? Work done in rotating the magnetic dipole. Right? Work done in rotating. Work done in rotating the magnetic dipole in a uniform magnetic field. Work done in rotating the magnetic dipole rotating the magnetic dipole in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. Okay. So just remember, work done in rotating the magnetic dipole. Let it was initially placed with the angle theta, and I changed the angle to theta 2. Let it was initially the magnetic dipole was making an angle theta 1, and I changed it to theta 2. इसके respect में, with respect to the magnetic field. Then student, work done in rotating the magnetic dipole from theta 1 to theta 2. मानो कि हमने theta 1 to theta 2 को rotate किया. किसकी respect में? With respect to a uniform magnetic field. With respect to a uniform magnetic field. Okay. So that work done will be equal to W1 is equal to, students, right? Theta 1 to theta 2, because the changing parameter is the angle. Magnetic moment into field strength B into sine theta d theta. Okay. M cross B. Okay. So that is equal to derivative of sine theta is cos theta, you know. So its integration of sine theta is minus cos theta. So minus, इसलिए minus आया. कोई पूछा था कि सर minus कैसे हुआ? M minus MB cos higher limit theta 2 minus higher limit theta 1 cos theta 1. Okay. तो अगर हम उसको थोड़ा सॉल्व करें, नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले जाए तो MB cos theta 1 minus cos theta 2. Cos theta 1 minus cos theta 2. Got it? Okay, students. This is the formula for work done. And if the dipole is rotated from a direction theta 1 is equal to 0 to theta is equal to theta, that means माने कि पहले वो parallel था. Friends, right? If the dipole is rotated, if the dipole is rotated from field direction, is rotated from field direction, is rotated from field direction, theta 1 is equal to 0 degree, theta 1 is equal to 0 degree to theta 2 is equal to let theta, कोई भी 0 से theta या फिर 30 to 40 इस तरह वो बोला होगा क्वेश्चन पे. तो डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, अगर 0 दिया हुआ शुरुआत में तो डायरेक्टली आप MB cos 0 is 1, yes or no, that is theta 1 is equal to 0 minus cos theta. ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हो. अंडरस्टूड? जस्ट नोट इट डाउन. Magnetism, just give heading Earth's magnetism, right? Earth's magnetism. Earth's की magnetism के बारे में the value of magnetic field on the surface of the Earth is about 1/10 of Gauss. So it is not near about few tenths of, and you know 1 Gauss is equal to minus 4 Tesla. Yes or no? And students, the Earth's south magnetic pole is located near the north geographic pole of the Earth's. North magnetic pole is located near the south magnetic pole. इसका ये मतलब है, students, just say me, if I will take a north pole and a south pole, what happens in north pole and south pole? Students, what happens in north pole and south pole? Always magnetic field lines come out of north, na? Yes or no? And enter at south, na? Yes or no? Friends, if I will freely suspend, अगर मैंने एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, जस्ट सी, मैंने इसको इस तरह फ्री सस्पेंड किया, अगर नॉर्थ पोल इस तरफ रहा, साउथ पोल इस तरफ रहा, समझ में आ रहा है सबको? तो डेफिनेटली इस तरफ में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? साउथ होगा ना, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है. और इस तरफ में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा स्टूडेंट्स? नॉर्थ होगा ना. अरे बात समझ रहे हो कि नहीं?
अगर मैंने एक बार मैग्नेट को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ दिखा रहा है मतलब इस तरफ जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली क्या है, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। और ये जो साउथ है दैट इज मतलब अपोजिट साइड में एक नॉर्थ पोल है, तभी जाके वो इस तरह अलाइन होके रह रहा है। कहने का ये मतलब है कि स्टूडेंट दिस इज अर्थ, इसे देखो यहाँ पर, लेट दिस इज अर्थ, दिस इज टोटल अर्थ। स्टूडेंट अर्थ का एक नॉर्थ से पोल है और एक साउथ पोल है, समझ में आ रहा है ना। और कहने की बात यह है कि अर्थ के अंडर में एक बड़ा मैग्नेट छुपा हुआ है, देयर इज ए बिग बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको। तो स्टूडेंट देखो, अगर मैंने इसको, हमारे पास दो, हम जो नॉर्थ बोल रहे हैं दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ, ऊपर वाला साइड नॉर्थ, नीचे वाला साइड साउथ बोलते हैं ना। तो ये क्या नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिए। जब हमने बार मैग्नेट को प्लेस किए कि देखे कि हम ये नॉर्थ की तरफ ट्विस्ट होके हो रहा है, दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, एंड दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन और ये टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। इसका ये मतलब है कि अर्थ के अंदर में जो बार मैग्नेट है, स्टूडेंट्स एक बात बताता हूँ सुनो, मेरे पास दो मैग्नेट है, मान के चलो आई एम हैविंग टू मैग्नेट्स। एक ये मैग्नेट है बड़ा मैग्नेट और ये एक मैग्नेट है। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, दो मैग्नेट जो है, जब मैं इसका अगर ये नॉर्थ पोल है, इसका अगर ये साउथ पोल है, तो ये मैग्नेट को मैं जब उसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये इसका कौन सा साइड रहेगा, उस तरफ, साउथ वाला साइड उस तरफ रहेगा ना, और इसका नॉर्थ वाला साइड इस तरफ रहेगा ना। यस और नो, समझ पा रहा है कि और एक बार बताऊं। फ्रेंड्स मैंने पहले से एक मैग्नेट रखा था, लेट आई हैव प्लेस्ड ए मैग्नेट लाइक दिस प्रीवियसली नॉर्थ साउथ, ठीक है। मैंने और एक बार मैग्नेट को ठीक उसके ऊपर ले लिया, तो वो किस तरह अलाइन होगा, और एक बार मैग्नेट को मैंने ले लिया तो वो किस तरह अलाइन होगा, थोड़ी ना नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ होगा। उस बार मैग्नेट का साउथ इस तरफ और नॉर्थ इस तरफ होगा ना, आपको पता है। तो मान के चलो मैंने यहाँ इस जी तरह सर। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ किस तरफ डायरेक्ट होते हैं, नॉर्थ टू साउथ ना। दैट मींस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है टू और साउथ। ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस ये वाला साइड को हम एक नॉर्थ पोल मान सकते हैं और ये वाला साइड को एक साउथ पोल मान सकते हैं। गेटिंग, यहाँ तक समझ में आया। जी मैंने अभी क्या किया, हाँ एक सर। बार मैग्नेट को लेके रख दिया इस तरह, आई जस्ट केप्ट ए बार मैग्नेट। तो मुझे बताओ, बार मैग्नेट का ये साउथ है ये नॉर्थ है, बार मैग्नेट कैसे अलाइन होगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, हाउ द बार मैग्नेट पहले की तरह अलाइन होगा या सेकेंड की तरह अलाइन होगा। बार मैग्नेट कैसे अलाइन होगा जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड पे ले जाऊंगा, साउथ कभी सेकंड साउथ की को तरह। सेकेंड की तरह होगा ना, क्योंकि साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा ना, समझ में आ रहा है, और नॉर्थ को जी साउथ सर। अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया सबको, जी यस सर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलो उसी बात को लेके मैं यहाँ पर चलता हूँ। तो हम जब एक अर्थ की, जब हम एक when we placed a bar magnet on earth, हम अर्थ के ऊपर जब एक बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, मान के चलो बार मैग्नेट का ये वाला साइड नॉर्थ है, मान के चलो नहीं, बार मैग्नेट जिस डायरेक्शन पे दिखाता है, ये वाला हुआ साउथ, ये वाला हुआ नॉर्थ, ये वाला हुआ साउथ, वो जिस तरफ साउथ दिखाता है हम उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं ना। समझ में आ रहा है, ऊपर वाला साइड जी हमेशा सर। नॉर्थ लेते हैं ना, नीचे वाला साइड साउथ लेते हैं ना। उसका ये मतलब है कि अर्थ के अंदर एक बड़ा मैग्नेट है जो कि साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, समझ में आ रहा है। दैट मीन स्टूडेंट्स, ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ आप बोल रहे हो, जब आप एक बार मैग्नेट को प्लेस करोगे मतलब उसके अर्थ के अंदर में जो मैग्नेट है वो एक बार मैग्नेट की तरह अगर ट्रीट करे, उसका साउथ पोल इस तरफ है, समझ में आ रहा है, और उसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है। तो हमारे पास दो पोल है, एक है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और एक है मैग्नेटिक साउथ पोल। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल आप जिसको बोल रहे हो, आप बोले हो कि ऊपर वाला सर नॉर्थ नीचे वाला साउथ, ये कौन सा नॉर्थ साउथ है, जियोग्राफिक। तो उसका मतलब उसके अंदर में एक बार मैग्नेट है जो कि साउथ, नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ और ये नॉर्थ की तरफ, समझ में आ रहा है। दैट मींस द अर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, समझ में आया। और अर्थ जी सर। मैग्नेटिक पोल, ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दैट इज लोकेटेड, कहां पर लोकेट हुआ है ये, where it is located, near the south geographic pole। फ्रेंड्स ये अर्थ है, मैंने एक बार मैग्नेट को इस तरफ ले लिया, आई जस्ट प्लेस्ड ए बार मैग्नेट, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ है ना, ठीक है, नीचे वाला साउथ है ना, यस सर। मतलब जियोग्राफिक, यस सर। जियोग्राफिक नॉर्थ है जियोग्राफिक साउथ है।
जब मैं बार मैग्नेट लूंगा, क्या करते हैं, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ रहेगा, दिस इज ए बार मैग्नेट, दिस इज नॉट अर्थ मैग्नेट, दिस इज व्हाट, दिस इज बार मैग्नेट, समझ में आ बार रहा में। है, एंड दिस इज साउथ। तो ये डायरेक्शन दिखाता है ना, मतलब बार मैग्नेट को लेके जब मैं सस्पेंड करूंगा वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन पे रहता है कि नहीं, उसका मतलब बार मैग्नेट इस तरफ अगर रहा तो ये नॉर्थ पोल, और अगर उसका साउथ इस पोल रहा तो साउथ पोल, समझ में आ रहा है। और बार मैग्नेट जो है वो अलाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के अंदर में और एक बड़ा मैग्नेट है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट एंड रेड जो दिख रहे हो, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, अर्थ के अंदर में एक बड़ा 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 बार मैग्नेट है। अगर ये बार मैग्नेट ऐसे नॉर्थ साउथ पे रह रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये साउथ और ये नॉर्थ होगा ना, समझ में आ रहा है, तभी तो जाके ये Yes, अलाइन sir. होके रह रहा है। बार मैग्नेट जो डायरेक्शन दिखा रहा है दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ रहेगा, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहेगा। बार मैग्नेट की साउथ पोल किस तरफ रहेगा, जियोग्राफिक साउथ की तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास और भी बिना देखा हुआ और एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर है। अर्थ के अंदर और एक बड़ा बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट जो नॉर्थ हम बोल रहे हैं दैट इज एक्चुअली अर्थ जियोग्राफिक मैग्नेटिक साउथ। जो हम साउथ पोल बोल रहे हैं जियोग्राफिक, दैट इज अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ। तभी तो जाके ये बार मैग्नेट ऐसे अलाइन होकर रह रहा है। अंडरस्टूड, ऑल अंडरस्टूड की जियोग्राफिक नॉर्थ क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, ऑल अंडरस्टूड जियोग्राफिक साउथ क्या है, मैग्नेटिक साउथ क्या है, Yes, sir. Yes, समझ तो आ गया सबको। एंड दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, एकदम परपेंडिकुलर, ऑल गॉट। Yes, sir. yes, sir. एक्चुअली अर्थ इज नॉट स्ट्रेट ना, इस अर्थ का जो एक्सिस हम लेते हैं वो थोड़ा टिल्ट होके है ना, दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस ना, यस और नो। ये जो जियोग्राफिक एक्सिस जो है स्टूडेंट्स, और तो अर्थ मैग्नेट, ये मैग्नेटिक एक्सिस हम ले लिए, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, लिखे ना यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जियोग्राफिक एक्सिस है, Yes, sir. both are not in one Yes, line sir. actually. This angle gap is student 11.5 degree. How much? 11.5 degree. 5. अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस दोनों अलाइन एक डायरेक्शन पे नहीं हुआ है, वो कुछ 11.5 डिग्री एंगल पे अलाइन हुए हैं। यहाँ तक समझ पे आ गया? Yes, sir. Yes, sir. लिसन, नेक्स्ट अगर हम जाए तो theories regarding the origin of Earth's magnetism, स्टूडेंट एक साइंटिस्ट है, वो फर्स्ट टाइम 1600 में ये बोले थे कि अर्थ के अंदर में, अर्थ के सेंटर में एक, बट लेटर ने थ्योरी को डिनाई किया गया क्योंकि अर्थ के अंदर में टेम्परेचर इतना बड़ा है कि मैग्नेट, ठीक है। सेकंड थ्योरी जो उसने दिए थे बोर ने, सर सुनाई नहीं दे रहा है सर। हम ये बोल रहे थे कि पहले गिलबर्ट ने थ्योरी दिए थे कि 16 से 1600 में दिए थे कि सेंटर पे है मैग्नेट, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेंटर में टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो मैग्नेट एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थ्योरी दिए थे ग्रोवर ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जो कि ग्रोवर, जो कि 1849 पे ये बताए थे that Earth's magnetism is due to the electric current flowing near the outer surface of the Earth. That means hot air rising from the region near equator goes towards the north and south hemisphere and becomes electrified. These currents magnetize the ferromagnetic material near the outer surface of the Earth. ये बताए थे, जो कि मतलब बाद में कैंसिल कर दिया गया। थर्ड थ्योरी ये था कि there are many conducting materials including iron, nickel in the molten state within the central core of the Earth. ये इसको अभी मान के चल रहे हैं हम कि अर्थ के अंदर में आयरन, निकेल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मोल्टेन स्टेट पे है, और कन्वेंशनल करंट्स आर जनरेटेड इन द कोर ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड विद इन द अर्थ। टिल डेट नॉट अ सिंगल थ्योरी कैन एक्सप्लेन इवेंट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो वही थ्योरी को हम अभी तक मान के चल रहे हैं कि अंदर में जो मोल्टेन स्टेट है वो मैग्नेटिज्म में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी देखो ये बात, आप अभी यहाँ पर देख सकते हो, ये है जियोग्राफिक मेरिडियन अभी मैंने बताया था, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, मान के चलो, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, एंड दिस इज नॉर्थ पोल। मतलब ये ज्योमेट्रिक में क्या है, मतलब मैग्नेट में क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है ना ये, और ये साउथ पोल मतलब ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, देख पा रहे हो ना, जियोग्राफिक नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक, जियोग्राफिक नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक साउथ, और जियोग्राफिक साउथ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स,
एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट राइट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कुछ कुछ टर्म के साथ हम एक्वेंटेड होंगे। तो देखो अर्थ के मैग्नेटिज्म में तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। नंबर वन, राइट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, करेक्ट। नंबर टू, एंगल ऑफ डीप, हम दिखाएंगे डायग्राम करके क्या है वो एंगल ऑफ डीप। और नंबर थ्री में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और इसको न्यूमेरिकल में करना। हॉरिजॉन्टल थोड़ा विजुअलाइज करना होगा आपको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। एंगल ऑफ डीप के डिक्लिनेशन के बारे में पहले डिसाइड करते हैं। लेट कोई भी एक पॉइंट पे अर्थ की सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट पे जस्ट सी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की अगर बात करें तो कोई भी एक पॉइंट पे ये ट्रू नॉर्थ है, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ, ये सब। और जब हम ये रखते हैं किसको, ये मैंने लिया मैग्नेटिक नीडल, समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक नीडल तो नॉर्थ दिखाता है ना, अंडरस्टूड। यस सर। बट अगर अर्थ की मैग्नेटिज्म की बात होगा तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का इस तरफ क्या होगा, साउथ पोल ना। यस और सर। अर्थ का इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल ना। फॉलो। तभी तो जाके ये साउथ नॉर्थ में अलाइन होके रह रहा है क्या, मैग्नेटिक नीडल कंपास, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स क्या होता है, द वर्टिकल प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन है, द वर्टिकल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब ये वाला, और द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल इज कॉल्ड द जियोग्राफिक मेरिडियन। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने बताया था अभी, ये जो लाइन जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है? वर्टिकल प्लेन में अर्थ को अगर वर्टिकली कट कर दिया जाए, जो एक्सिस जाता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रो नॉर्थ साउथ में जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, है कि नहीं? और अभी हम यहाँ दिखे ना थोड़ी देर पहले कि एग्जैक्टली अलाइन होकर नहीं रह रहा है, जियोग्राफिक एक्सिस कुछ अलग है और मैग्नेटिक एक्सिस कुछ अलग है, ये सब नो। तो इसीलिए दोनों एक जगह पे अलाइन नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? And student, the angle between the magnetic meridian and the geographic meridian is known as what? Angle of declination. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं the angle between the magnetic meridian, the angle between the magnetic meridian and the true meridian. True meridian मतलब कौन सा meridian? True meridian मतलब क्या है? Geographic meridian. Understood? ये जो true meridian लिखा है उसका मतलब है geographical, right? Geographical meridian. स्टूडेंट समझ पाया? उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये इस तरफ भी रह सकता है, इस तरफ भी रह सकता है, डजंट मैटर। अगर पॉजिटिव में गया पॉजिटिव लेते हैं, अगर इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव लेके चलते हैं। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में आइडिया हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. देखो और एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारा अर्थ है। क्या है ये, अर्थ। ओके, ये जो लाइन जाता है ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, अंडरस्टूड। Yes, sir. जब मैंने एक बार मैग्नेट को लिया तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली ये नॉर्थ और साउथ के अलग पे नहीं रह रहा है। इसका नॉर्थ पोल इस तरफ दिखाता है, उसका साउथ पोल इस तरफ दिखाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो बड़ा मैग्नेट है उसका साउथ पोल इस तरफ है और इसका नॉर्थ पोल इस तरफ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये मैंने ले लिया स्ट्रेट नॉर्थ, मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन। दोनों एक लाइन पे नहीं है, देयर इज एंगल बिटवीन देम। दैट उसी एंगल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कहीं पे थीटा कहीं पे अल्फा भी दिखाया जाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आया सबको? फ्रेंड नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हम अल्फा लिए हैं यहाँ पर, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हम अल्फा लिए हैं, ठीक है। दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल है दैट इज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जस्ट नोट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, करेक्ट। और स्टूडेंट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगल ऑफ डिप। जस्ट गिव रीडिंग, एंगल ऑफ डिप किसको कहते हैं, एंगल ऑफ डिप बताता हूँ, फिर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा, राइट। एंगल ऑफ डिप, यहाँ पर इसको सिग्मा लिया गया है, ठीक है, सिग्मा लिया गया है और ये अल्फा लिया गया है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को। एंगल ऑफ
डिक्लिनेशन क्या है? राइट, the angle of declination, right, the angle of dip at a place, the angle of dip at a place is the angle between, right, is the angle between the direction of Earth's magnetic field, 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 and the horizontal, and the horizontal. फ्रेंड्स हम कंपेयर करने के लिए ना, ठीक है, ये हम ले लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन और उसको आप बोल सकते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, समझ पे आ रहा है? और ये आप ले लिए मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक नॉर्थ, वो दो जो एंगल करें दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और स्टूडेंट इसको हम देखो यहाँ पर ये जो लाइन है एग्जैक्टली जो लाइन है दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये जो लाइन है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। जब मैंने एक नेडल को रखा यहाँ पर नॉर्थ साउथ करके, मैंने स्टूडेंट एंगल ऑफ, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? मैग्नेटिक नीडल से कैसे मेजर कर सकते हैं? स्टूडेंट एक मैग्नेटिक नीडल को ले लो और इसको फ्री रोटेट करो, रोटेट इन ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नीडल, ठीक है। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अर्थ वर्टिकल, अर्थ आप सामने से हम देखते हैं तो अर्थ इज लाइक दिस ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकल दिखता है ना, है कि नहीं? तो अगर वर्टिकल दिखता, अगर एग्जैक्टली वर्टिकल दिखा तो एंगल ऑफ डिप कितना हुआ? मैंने इसको लिया था एग्जैक्टली वर्टिकल दिखा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ डिप कितना हुआ स्टूडेंट्स? 90 डिग्री ना, ठीक है, समझ पा रहा ना? ये मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लिया, वो एग्जैक्टली ऐसा दिखा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल किया? विद हॉरिजॉन्टल लिखे ना हम, कितना एंगल किया? 90 डिग्री ना, दैट इज एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। सस्पेंड करते हैं मैग्नेटिक नीडल को तो एग्जैक्टली 90 नहीं रहता है। अगर मैग्नेटिक इक्वेटर में, अगर हम इक्वेटर पे देखें यहाँ पर, अगर ऐसे रखा गया इसको, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डिप कितना हो जाएगा? 0 ना। दैट मींस ये जो एंगल ऑफ डिप की बात हम कर रहे हैं, तो ये इक्वेटर में कितना है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर कितना है? 0, क्योंकि पैरेलल, ठीक है। अगर हम वर्टिकली रखेंगे तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा? अगर मैग्नेट को मैं वर्टिकली प्लेस किया तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 90 डिग्री ना, समझ पा रहा है कि नहीं? समझ पा रहा है ना एंगल ऑफ डिप मतलब क्या है? कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ डिप। समझ पे आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, फिर देखो यहाँ पर हमने अस्तु देखा सर, है, हाँ सर, what सर फ्रेंड्स एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ आपका। अभी हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स अगर वो एंगल नहीं कर रहा है, इफ इट इज नॉट मेकिंग, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इक्वली इस तरफ है, बी इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर ये सिग्मा है स्टूडेंट्स, या फिर कन्वीनियंट होने के लिए इसको थीटा ले लो, इसको भी थीटा ले लो, नो कंफ्यूजन। तो स्टूडेंट एक इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड और एक इस तरफ होगा ना, ये सब नो। अगर मैं इसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ले लिया एंड दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा ना, ये सब नो स्टूडेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एच और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना वी, समझ पे आ रहा है? तो v इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? बीई cos बीई sin थीटा होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये एच कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? बीई cos थीटा। यहां तक समझ पे आ गया सबको? स्टूडेंट्स ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स? थीटा। तो उसका दो कंपोनेंट आएगा ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये सब नो। यस सर, तो अगर ये थीटा है तो ये बीई cos थीटा हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर उसको है तो बीई sin थीटा हो जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सर वॉइस आपका थोड़ा थोड़ा कट रहा है सर। नहीं देखो, अभी ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी ले ली, एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है ना। तो उसका जो जी कंपोनेंट सर, अलोंग द हॉरिजॉन्टल आएगा क्या होगा? बी cos थीटा ना। जो यस परपेंडिकुलर सर, आएगा वो क्या होगा? बी sin थीटा ना। यस सर, गॉट इट? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, करेक्ट? मतलब बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस बी sin थीटा का स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस जी सर, यस और नो?
अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट थीटा पूछेगा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, p बाई बी, मतलब v बाई h ना। जी सर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ v बाई h। v मतलब क्या है, be cos थीटा ना, सॉरी be sin थीटा बाय जी सर। tan इनवर्स ऑफ be बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय be cos थीटा, e cos थीटा। so that is tan थीटा ओनली, yes or no। यस सर। तो अगर हमें h पता है और थीटा पता है तो we can find b and v। अगर हमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया स्टूडेंट्स, हम जब अर्थ हम जो भी एक्सपेरिमेंट सब कर रहे हैं सब अर्थ के ऊपर रख के कर रहे हैं ना। हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मैंने मैग्नेट को ऐसे प्लेस किया, मतलब मैंने कैसे प्लेस किया, पैरेलल टू द अर्थ ना। यस सर। बट एक्चुअल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, समझ पा रहा ना। तो दैट मींस ये जो बी बी मैं चिल्ला रहा हूं दैट इज नॉट बी, दैट इज बी ई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इनटू cos थीटा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर हमें बी cos थीटा पता चल गया तो हम थीटा निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट। यस सर। समझ पा रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली द थिंग इज जी दैट सर। वेरी केयरफुली लिसन, अगर हम जो भी सारे एक्सपेरिमेंट हम अभी कर रहे हैं मैग्नेट को रख के, तो आई एम प्लेसिंग द मैग्नेट लाइक दिस, अंडरस्टूड। और किसी भी तरह मैंने ये मैग्नेट मेजर कर दिया कि दिस मच टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड, बट दैट इज नॉट बीई ना, आई एम मेजरिंग इट्स कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल। दैट मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज व्हाट, बीई cos थीटा, करेक्ट। और उसको परपेंडिकुलर जो क्या है वो दैट इज बीई sin थीटा। अगर मुझे थीटा पता है और ये पता है तो मैं बीई निकाल सकता हूँ, यस और नो, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। समझ ली स्टूडेंट्स।